विद्यार्थण दा छुरी मार के कतल। चंडीगढ़ के सैक्टर 36 दी पार्क दे विच एक हमलावर दे वल्लों इस घिनौनी वारदात नूं अंजाम दिता गया। सुहानी नाम दी लड़की जो कि पीयू चंडीगढ़ दे विच BA 3rd ईयर दे विच पढ़ाई कर रही सी तां दस दईए कि एक हमलावर दे वल्लों उसनूं चंडीगढ़ के सैक्टर 36 दी पार्क दे विच घेरिया जांदा है, जिस तों बाद उसदे गले दे उत्ते छुरी दे नाल वार करके उसनूं मौत दे घाट उतार दिता जांदा है। तां इस मौके पीड़िता दी मां दा भी बयान सामने आया, जिन्हां दे वल्लों यह दावा किया गया है कि सुहानी अपने घर दे विच खाना पका रही सी, लेकिन चॉकलेट लैण दे लई जदों घरों बाहर निकलदी है ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਉਹ ਘਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮ੍ਰਿਤਕਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸੁਹਾਨੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੋਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਸੁਹਾਨੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਹਾਨੀ ਕੰਬਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵਿਨੇ ਨੇ ਛੁਰੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰ ਜੋ ਹੈ ਸਦਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਪੀੜਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਨੂੰ ਵੀ ਇਤਲਾਹ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਨੂੰ ਵੀ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ बुलाया जाता है, लेकिन एंबूलेंस जो है वह पार्क दे विच दाखिल नहीं हो पाती, जिस तो बाद मृतका दा जो पिता है वह जख्मी हालत दे विच अपनी धी सुहानी नूं सैक्टर 16 के हस्पताल दे विच लैके जांदा है, जिथे कि डॉक्टरां दे वल्लों सुहानी नूं मृतक ऐलान दिता जाता है। तो दस दईए कि पीड़ित परिवार दे वल्लों रो रो के यह गल आखी जा रही है। पीड़िता दी जो मां है उसका बयान सामने आ रहा है, जिस दे वल्लों ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸੁਹਾਨੀ ਮੇਰੀ ਧੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਲਕਿ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਸੀ। ਹਮਲਾਵਰ ਨੂੰ ਜੋ ਕਾਤਲ ਹੈ ਸੁਹਾਨੀ ਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸਾੜ ਦੇਵਾਂਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੇ ਲਈ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੀੜਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਹਾਨੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਧਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, 4 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸੁਹਾਨੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਸੈਕਟਰ 56 ਦਾ ਨਿਵਾਸੀ ਹੈ ਰਾਹੁਲ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਹਾਨੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਸੁਹਾਨੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੰਗੇਤਰ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ चॉकलेट लैण दे लई घरों बाहर निकली सी। सुहानी पीयू चंडीगढ़ दे विच BA 3rd ईयर दी विद्यार्थण सी जो कि UPSC दी तैयारी कर रही सी ते एक क्लीनिक दे विच भी सुहानी जो है काम कर रही सी। तां जो दोषी है उसका नाम विनय दस्सिया जा रहा है, जो कि बिहार दे मधुबनी दा वसनीक है ते सैक्टर जो है 35 दी एक मिठाई दी दुकान दे उत्ते इस वेले काम कर रहा है। ਤਾਂ ਪੀੜਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵਿਨੇ ਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਖਸ ਹੈ ਉਹ ਲਗਭਗ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸੁਹਾਨੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੰਗ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਸੁਹਾਨੀ ਨੂੰ ਵਿਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਾਹੁਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪੱਕਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਤੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਵਿਆਹ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 36 ਦੀ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਹਾਨੀ ਦਾ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਨੇ ਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਸ਼ਖਸ ਹੈ ਉਹ ਸੁਹਾਨੀ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਗਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛੁਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੀੜਤਾ ਦੀ ਮਾਂ ਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜੋ ਬਿਆਨ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਜਾਂਚ ਹੈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੋ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਨੇ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਲਗਾਤਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੀੜਤਾ ਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ लगाई जा रही है। सबसे पहले मैं यही बोलना चाहूंगी कि हमारे 35C में जो है एक 2 भाई रहता है, उनकी 2 बेटियां और एक बेटा है। आज के नहीं, ये 30-35 साल से बैठे हैं। ये बच्चे यहीं पर पैदा हुए, यहीं पर बड़े हुए। और ये मकान देख सकते हो आप 2161। अपने इधर एक एडवोकेट निशा जी रहते हैं और उधर हाफिज भाई रहते हैं जो कांग्रेस पार्टी से हैं। और मैं भी इसको 10 साल से बच्ची को जानती हूँ। इतनी खूबसूरत बच्ची, वो लड़की नहीं वो लड़का था। उस बच्ची के अंदर इतना जुनून था जिंदगी जीने का कि मम्मी मैं तेरे को मकान लेके दूंगी रहने के लिए और मेरे बहन भाई को सबको पढ़ाऊंगी। मेडिकल की एक दुकान है, अपने इधर भी जॉब करती थी और इतनी अच्छी लड़की, पढ़ी लिखी। मैं कहती कोई डबल MA करे हुआ भी इतना इंटेलिजेंट नहीं होगा। मेरे घर पे भी आती रहती थी, इलेक्शन में भी मेरी पूरी सपोर्ट करी है। उनकी एक छोटी सिस्टर भी है, ये भाई भी है। मैं कहती हूँ बच्ची सारा दिन रात मेहनत करके अपने माँ बाप के साथ यहाँ गुजारा कर रही थी। और 36 सेक्टर में कोई भी लड़का आके उस बच्ची का गला काट देता है, मतलब कितनी शर्म की बात है। एक चंडीगढ़ जैसे शहर में जो कि हर 2 कदम पर पुलिस होती है, एक माँ 9 महीने पेट में रख के प्रेस कर करके आगों पे तप के उस बच्ची को पढ़ाया, लिखाया, अपने पैरों पे खड़ा किया और 1 मिनट के अंदर एक लड़का आके उसकी गर्दन काट देता है। कम से कम मैं एक चीज़, एक मैसेज देना चाहती हूँ चंडीगढ़ में, अपनी बेटियों को मत तो करिए, उल्टा अपने बेटों को बोलो
हर माँ अगर अपने बेटे को शिक्षा देना शुरू कर देना, ना शहर में लड़कियों के रेप होंगे, ना मर्डर होंगे। सवेरे जितनी शिक्षा अपनी बेटी को देते हैं उतनी शिक्षा अगर आप अपने बेटे को दो तो ये आज से बहुत कम हो जाएंगे। और इस माँ को इंसाफ मिलना चाहिए। उसको मैं कहती हूँ फांसी की सजा होनी चाहिए, फांसी की सजा होनी चाहिए। उस बच्चे को अभी गिरफ्तार किया जाए। अगर गिरफ्तार नहीं किया उसको तो जहां भी हमें स्ट्राइक पे बैठना होगा वहां भी बैठेंगे। और जहां पुलिस थाने एसएसपी जहां भी जाना होगा, मैं भी निशा जी और हाफिज भाई ने तो ये तक बोल दिया था कि पूरी शादी का खर्चा मैं करूंगा। वो अपनी बच्चियों के बराबर समझते थे। तो बहुत शर्म की बात है कि अगर ऐसे एक बच्ची सेफ नहीं है तो ऐसे तो फिर किसी की भी बच्ची सेफ नहीं है, चाहे वो मेरी हो चाहे जिसकी मर्जी हो। दिन रात मेहनत करके, दिहाड़ी करके, लोगों के घर साफ करके, झाड़ू पोछा करके, प्रेस करके जब अपने बच्चों को पढ़ते हैं तो ये बिल्कुल ही जो हुआ बहुत गलत हुआ है। और मैं कहती हूँ कि जहाँ हम लोगों की ज़रूरत है पूरा 35 इनके साथ खड़े होकर, अगर जब तक उसका पोस्टमार्टम होकर उसको नए लड़के को उठा के फांसी देते हम चुप नहीं बैठेंगे। फांसी की सजा होना चाहिए। अगर आप सबके बस का नहीं है तो मुझे हवाले कर दो, मैं उसको जला दूंगी, जिंदा जला दूंगी। मैं अपनी बच्ची का इंसाफ चाहिए मुझे। मेरा बेटा था, बच्ची नहीं थी मेरी, इकलौती बेटी मैं मानती थी उसको मैं। ये पहले भी तंग करता था आपकी बेटी? मुझे बताती नहीं थी, बताती तो मैं कंप्लेन कर देती। मैं कल उसको मैंने बार फोन, मेरे को बोलती चॉकलेट लेके 5 मिनट में आ रही, तो 10 मिनट 15 हो गया, मैंने फिर फोन करना शुरू कर दिया उसको। तो उसने लास्ट में उठाई, चौथी बार में कहती मम्मी मेरे को विनय ने चाकू मार दिया, मेरी वही जान निकल गई। जी पता नहीं, पुलिस तो काफी लेट पहुंची, जब तक उसकी जान चली गई। ढूंढते ढूंढते मैं पहुंची, वहीं अकेली, कोई नहीं था वहां पे, मेरी बच्ची मैं अकेली। उसके सहेली का दोस्त भाई था, उसको लेके मैं भागी। मैं कहा भाई चल छत्तीस का पार्क किधर है, मुझे तो पता भी नहीं है। वो लेके गया, मैं वो दोनों ढूंढने लगी, देखा जाके वही मैं गिर गई। उस लड़के का कड़ा मिला मुझे हाथ में। पता नहीं अभी तो कुछ नहीं पकड़ा उसको। तो करता मेरे फोन पे करा सुबह उसने, कहता सुहानी ठीक है। हरामजादे ने बदल की तरह किसके नंबर से फोन करता है, मेरा नंबर पता नहीं उसको कहाँ से मिला है हरामजादे को। इस साथ में नहीं काम करता था। शादी फिक्स करी थी सर, मैं सोच रही थी जनवरी 9 अगस्त तक, जुलाई अगस्त तक मैंने उसकी रिंग सेरेमनी करनी थी मुझे। कहती मम्मी बहुत अच्छा मेरी जोड़ी बन गई, मैं कर लूंगी शादी। मैं कहा ठीक है बेटा। कहती कल फिर मासी से बोल रही थी, मासी पसंद है मेरी जोड़ी, अच्छी लग रही। कहती हाँ बहुत अच्छी लग रही मासी। कहती मासी मेरे को चैन देना सोने की। मासी ने बोला बेटा मैं दे दूंगी, तो शादी कर, मैं दे दूंगी चैन। क्या हुआ क्या था? ये मेरी बेटी बड़ी वाली 22 साल की है लमसम। ये मार्केट गई थी सामान लेने। विनय कुमार का लड़का इसको फ़ोन किया, पार्क में बुलाया और उसने चाकू मारा। मेरी लड़की ने फ़ोन करके इतना बता दिया कि मम्मी कि विनय मेरे को चाकू मार दिया है, मैं यहाँ 36 पे पार्क में पड़ी, मुझे चाहिए इंसाफ। मेरे 3-4 बच्चे हैं, मैं कहाँ जाऊँ? हाँ तंग करता था। ये बीच में 1-2 दिन में झगड़ा हुआ होगा तो हम कह नहीं सकते बच्चों का। तो ऐसे खतरनाक इंसान को खुला छोड़ा जा सकता है? आज बड़ी बेटी को मार दे, कल मेरे छोटे बच्चे हैं वो भी मार देगा। उसका कोई भरोसा नहीं, अभी पकड़ा तक नहीं गया है। मर्डर का लमसम 9 बजे। तंग इसलिए करता है वो कुछ इनका लिंक होगा। हाँ जी, इसके बच्चे आजकल बताते कहाँ जी? अब इनका कुछ लिंक होगा, कुछ झगड़ा होगा तभी बता रहे, तभी किया ऐसा काम। मेरी बेटी 22 सेक्टर में क्लिनिक की दुकान पे काम करती थी, ठीक है जी, स्किन की डॉक्टर के पास काम करती थी। और ये इधर उधर बाइक आवारा गिरदी गलियों में घूमता था, ठीक है जी।
तो हो सकता है कहीं जैसा काम किया है इसने। ना बेटी ने बताया नहीं होता, विनय ने चाकू मारा तो मुझे क्या पता लगा। हाँ जी, पुलिस कंप्लेंट कर दी। ठीक है, वो कह रहे हैं कि उनके बाप को उठा रहा हूँ, फलाना करो, धमाका करो। ठीक है, मिल जाएगा। मेरी बेटी तो जान से गई। वो कल भी मैं अकेला यहाँ 100 बच्चे सोएंगे तो कल मेरे के ऊपर भी मार सकता है। हाँ, पुलिस तो कह रही है, सिर्फ कह रही है, अब कर रही है मुझे नहीं मालूम। 22 साल।